Good morning, students. Question number 1 and 2 we have already done yesterday of exercise 5.1. Let us start with question number 3rd. In question number 3rd, express each of the following in exponential form. First part है आपके पास -2 into -2 into -2 into -2. Here you have to express it in exponential form. It means -2 raised to power 4. Why? Because here 2 is repeated 4 times. You can count it 1, 2, 3, 4. That's why here -2 raised to power 4. -2 will remain as such. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगेन गिवन क्वेश्चन में आपके पास कंप्लीट नंबर दे रखा है -27 अपॉन 343 and here you have to write down the given number in exponential form. To write it in the exponential form, first we make their factors. 3 3s are 9, 3s are 27. In denominator 7 7s are 49 and 49 7s are 343. Now since the given number is negative, here we can take a negative sign or either you can write down it -3 into -3 into -3. आप 3 के 3 नंबर्स नेगेटिव भी इसमें ले सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास बनेगा -3 अपॉन 7 होल रेज टू पावर 3 बिकॉज हेयर 3 इज रिपीटेड 3 टाइम्स 1 2 3 and 7 is repeated again 3 times 1 2 3. Therefore your answer is -3 upon 7 whole raised to power 3. Since in numerator and denominator, check it out whether the number is repeated same number of times or different. Try to make the factors in such a way that numerator and denominators both have the same exponent. In this question that is not necessary, you have to always make the prime factors, but आपने ध्यान रखना है कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए. नेक्स्ट इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर मैं 5 कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट. रिमेनिंग पार्ट्स वी विल डिस्कस इन गूगल मीट. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. 6 रेज टू पावर 3 दैट इज़ गिवन. सिंपली आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स आप इसको ओपन कर लें. 6 इंटू 6, 3 टाइम्स आप 6 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई द नंबर्स. 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 216 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का आपके लिए वन मोर पार्ट कर रही हूँ. दैट इज़ सी पार्ट. दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. सी द सी पार्ट. -11 अपॉन 12 होल रेज टू पावर 2. फ्रैक्शनल नंबर गिवन है सी पार्ट में आपके पास एंड प्लस नेगेटिव साइन भी है. ओपन करेंगे. -11 इंटू -11 ट्वाइस बिकॉज पावर इज़ 2. इन डिनोमिनेटर 12 इंटू 12. नाउ मल्टीप्लाई द नंबर्स. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 11 11 ज़ा 121 एंड 12 12 ज़ा 144. 121 अपॉन 144 इज़ योर आंसर. ए एंड सी पार्ट मैंने आपके लिए किया है क्वेश्चन नंबर 5 का. एंड द नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, कंपेयर द फॉलोइंग. -2 फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट. कंपेयर द फॉलोइंग -2 raised to power 4 or -3
raised to power 3. In this part, since you have to compare the numbers, so first we open the expand it. Minus 2 raised to power 4 equal to minus 2 into minus 2 into minus 2. 2 to the 4, to the 8, to the 16. Negative sign become positive because minus minus plus, plus minus minus, minus minus plus. Since power is even, you can check it out from here also. If the power is even, then the negative sign become positive. If the power is odd, then the number will remain negative. Next है मेरे पास minus 3 raised to power 3. Expand it. Minus 3 into minus 3 3 times. 3 3s are 9, 3s are 27. Since here power is odd, the number will here remain negative. It means minus 27. Now compare both the numbers, 16 and minus 27. 16 is greater than minus 27. Therefore, you can write down minus 2 raised to power 4 is greater than minus 3 raised to power 3. Next आपके पास B, C, D and E part do yourself and we will discuss your queries in the Google Meet. Question number 7. Next हम question number 7 कर रहे हैं. A part सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपको. सिंपल सिंप्लीफाई में इट मीन्स आपको एक्सपैंड करके उसको ओपन करके मल्टीप्लाई करना है. दैट्स ऑल. minus 7 raised to power 2 into 3 raised to power 2. minus 7 into minus 7 because power is here 2. Next आपके पास 3 into 3. Multiply the numbers, get the answer. 7 7s are 49 plus 49 because minus minus plus हो जाएगा. 3 3s are 9. Multiply 49 with 9. 9 9s are 81 and 8 आप कैरी करेंगे. 9 4s are 36 plus 8 441 is your answer. Similarly you can do the remaining part. मैं इसमें से आपके लिए one more part कर रही हूँ. That is question number 7 का F part मैं आपके लिए कर रही हूँ. See in the F part, 4 into 5 into 20 raised to power 2. You can put here bracket also. बुक में ब्रैकेट नहीं लगी, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं. Open it. 4 into 5, 20 into 20. 4 5s are 20. Now multiply all the three numbers. 2 2s are 4, 2s are 8, 8000 is your answer. Next we will start question number 8. In question number 8, simplify and write in exponential form. Question number 8, A part, minus 16 raised to power 5 into minus 16 raised to power 3. Question है simplify and write in exponential form. आपको सिंप्लीफाई करना है. नाउ चेक द क्वेश्चन. नाउ हेयर वी यूज़ लॉ नंबर 1 ऑफ एक्सपोनेंट. बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लिकेशन इज देयर. मेन फंडामेंटल ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन है. बेसिस आपके पास सेम है तो हम लॉ यूज़ करेंगे. फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है? इफ़ द बेसिस आर सेम देन वी कैन ऐड द पावर्स. minus 16 raised to power 5 plus 3. minus 16 raised to power 8. Since here you have to give the answer in exponential form, तो leave it here, that is your answer. आप इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं अगर करना चाहें. नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज पावर इवन है. यू कैन राइट डाउन 16 रेज टू पावर 8 ऑल्सो. आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में सी पार्ट में आपके लिए कर रही हूँ. बी पार्ट आपका सेम है, मल्टीप्लिकेशन का सेम आपने लॉ 1 यूज़ करना है उसमें. इन द सी पार्ट 5/7 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 5/7 रेज टू पावर 7. नाउ सी हेयर
दैट इज़ द सेकेंड लॉ एप्लीकेबल होगा इसमें एक्सपोनेंट का. डिवीजन इज देयर, बेसिस आर सेम. 5/7 रेज टू पावर 7 माइनस 7. नाउ ए एंड बी, हमने सेकेंड लॉ में क्या किया था, ए इज़ ग्रेटर देन बी, हेयर बोथ आर इक्वल. तो 7 माइनस 7 इट विल बिकम 5/7 raised to power 0. When the power is 0 of any rational number, then it will become equal to 1. Your answer is 1. Similarly, you can do the remaining part of question number 8. If you have any doubt, we will discuss later. Next question number हम कर रहे हैं आपके लिए question number 9. In question number 9, A part, express each of the following with positive integers as exponent. First part, 17 raised to power minus 3. क्वेश्चन है आपका क्या करना है, अपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, आपने पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आपने आंसर देना है. तो इट मीन्स आपका इसमें लॉ यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. अगर आपको याद हो, हमने कल आपका लॉ किया था, दैट इज़ द लॉ नंबर आपका 3rd है. हेयर वी टेक द रेसिप्रोकल टू मेक द एक्सपोनेंट पॉजिटिव. 1/17 रेज टू पावर 3. दैट्स ऑल, दैट इज़ योर आंसर. उसने सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे. नेक्स्ट इसका मैं बी पार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th का. इन द बी पार्ट, 4 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय 4 रेज टू पावर 11. सेकेंड लॉ यूज़ हो रहा है, बेसिस आर सेम, डिवीज़न हो रही है, तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 4 रेज टू पावर 7 माइनस 11. सिंस हेयर b इज़ ग्रेटर देन a, देयरफॉर आपके पास नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगा. 4 रेज टू पावर माइनस 4. टू मेक द नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव, हेयर वी टेक द रेसिप्रोकल. 1/4 रेज टू पावर 4. दैट इज़ योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट. नेक्स्ट मैं वन मोर पार्ट आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज़ डी पार्ट. इन द डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4 रेज टू पावर -6 एंड होल रेज टू पावर 2. डबल पावर है आपके पास. कल हमने इसमें लॉग्स में आपके एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व किया था. विद द सेम वे यू हैव टू सॉल्व इट. 6 2 ज़ा 12, 4 रेज टू पावर -12. नाउ टू मेक द नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव, अगेन हेयर वी टेक द रेसिप्रोकल. 1/4 रेज टू पावर 12. नेक्स्ट इसमें एक ई पार्ट आपका दिया हुआ है. ई पार्ट में आपके पास सी इन द ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 9th, दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट है आपका. ई पार्ट है जो आपका, ई पार्ट में आपके पास 1/5 रेज टू पावर -2. नेगेटिव एक्सपोनेंट आपका डिनोमिनेटर में दे दिया है. नाउ टू मेक इट पॉजिटिव, अगेन हेयर वी टेक द रेसिप्रोकल, वी विल टेक इट इन द न्यूमरेटर एंड इट बिकम पॉजिटिव. 5 रेज टू पावर 2. दैट इज़ योर आंसर. दैट्स ऑल. That's all for today's. Your problem will be discussed in the Google Meet. Thank you.